Hi guys, welcome to Maneuver Education. In this video, we are going to discuss the most important question from the sports and game section. So, 30 most important question from this section for hotel management, NCHM, CT, JEE 2025 examination. And this is the part 8 of the video series. Further more parts will be coming up. So, stay tuned on this channel and do subscribe and like these videos so that who are preparing for this examination also get benefit from this video. So, let's get started. Before that, here is some important information regarding self-study program. If you want to join us for self-study program, so you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes, live classes on pan India level, and the counselor will guide you. Else you want to visit our website where you can see each and everything about the hotel management. So I will give you the tour guide of the website. So you have to go to maneuveredu.com. Here you can see the hotel management. Click on the hotel management. You will see the NCHM, CT, JEE examination and go to the live classes. So live classes is available, that is crash course, fast track batch, S2C live batches. Self-study courses are also available, that is the self-study course 2025-2026. Sectional course, you can avail the sectional course each and every section. फिर मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो, कंप्लीट फुल लेंथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आर अवेलेबल, सो यू कैन अवेल ईच एंड एवरीथिंग ऑन फ्रॉम द वेबसाइट. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको ये मिल जाएगा लिंक, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. And the first question is, for the first time Commonwealth Games were played during 1930 in. So सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था. कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? दैट इज द कंट्री, मोस्टली द कंट्री रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स. So first time this game was held at Brazil, Canada, Pakistan, London, and the correct answer is Canada. So 1930 British Empire Games were the first of what later becomes known as the Commonwealth Games and were held in Hamilton in the province of Ontario, Canada from August 1623 to 1930 में जो है ये गेम हुआ था. आपको कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में कब हुआ था? 2010 में जो है इंडिया में इस गेम को ऑर्गेनाइज किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया फर्स्ट वन द ओलंपिक हॉकी गोल्ड एट. तो पहली बार जो है ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड जो है इंडिया को सबसे पहली बार कब मिला था? कौन से ओलंपिक में? एम्स्टर्डम, लंदन, बर्लिन, लॉस एंजलिस. एंड द करेक्ट आंसर इज एम्स्टर्डम. सो इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन 1928 और द एम्स्टर्डम गेम्स जो है वहां ये इंडिया को मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल इज. तो सबसे पहली वीमेन कौन थी जिनको ओलंपिक में मेडल मिला? कोई भी मेडल, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर जो भी हो, वो सबसे पहली कौन सी वीमेन थी? तो अश्विनी नचप्पा, कर्णम मलेश्वरी, उषा सचदेव, पीटी उषा. एंड द करेक्ट आंसर इज कर्णम मलेश्वरी. सो कर्णम मलेश्वरी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 2000 समर ओलंपिक्स एट सिडनी. ये जो है आपको वेट लिफ्टर है. राइट नाउ शी इज द आपको वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है कर्णम मलेश्वरी. Next question is, who was the captain of the West Indies team that was defeated by the Indian cricket team in 1983 to win the Prudential World Cup? तो 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव was the captain of Indian cricket team और इंडिया ने जिसको हराया था वेस्ट इंडीज को, उस वक्त वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन कौन थे? रिची रिचर्डसन, क्लाइव लायड, मैल्कम मार्शल, विब रिचर्ड्स. एंड द करेक्ट आंसर इज क्लाइव लायड. सो कैप्टन द वेस्ट इंडीज बिटवीन 1974 एंड 85. ही कैप्टन द वेस्ट इंडीज इन 3 वर्ल्ड कप्स में जो है ये लगातार कैप्टन थे. पहले का 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीत चुकी थी और ये 3rd वर्ल्ड कप था वन बाई इंडिया. मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जीती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसेस इज द टर्म एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. तो एसेस जो है वो किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट. एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट. सो द टर्म एसेस इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड. ये 5 टेस्ट मैच जो है इन दोनों के बीच होती है, टीम के बीच. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट राइवलरी है इंडिया और इंग्लैंड का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्पोर्ट इज द पार्टिसिपेंट कॉल्ड पुगिलिस्ट. ये किस स्पोर्ट का वर्ड है? पुगिलिस्ट जो है पार्टिसिपेंट को कहा जाता है किस स्पोर्ट में? जैवलिन थ्रो, बॉक्सिंग, स्प्रिंटर, रेसलिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज बॉक्सिंग. सो लिटरली अ पुगिलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु फाइट्स विथ फिस्ट्स. इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन पुगिल विच मीन्स अ बॉक्सर. तो ये जो है आपको बॉक्सिंग में जो है ये चीज़ें कहा जाती है पुगिलिस्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड. सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है उसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली. एंड द करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड.
सो हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज लोकेटेड इन लुजाने, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट। सो देर आर 4 मेजर ग्रैंड स्लैम इन द फील्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट, और इसमें से जो है ग्रास कोर्ट पे कौन सा जो है आपको ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, एंड द करेक्ट आंसर इज विम्बलडन ओपन। So Wimbledon is the oldest tennis tournament in the world and is widely considered to be the biggest and most prestigious, और ये स्टार्ट हुआ था लंदन में 1877 में। और ये फ्रेंच ओपन जो है दैट इज प्लेड ऑन क्ले कोर्ट, ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस ओपन प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वेयर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक्स हेल्ड। तो सबसे पहली बार जो है ओलंपिक्स कहाँ जो है वो रिकॉर्डेड के तौर पे कहाँ किया गया था ऑर्गेनाइज। 320 BC, 776 BC, 80 AD, 825 BC, and the correct answer is 776 BC. So in ancient history, the first recorded Olympic Games took place in glade called Olympia, surrounded by the pine forest on the northwestern coast of Peloponnese in the year 1776 BC में जो है सबसे पहली बार जो है ओलंपिक्स गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। ऐसे मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम इन 1896 और कहाँ ग्रीस में एथेंस में जो है सबसे पहली बार हुआ था। इस बार 2024 में कहाँ हुआ है, सो दैट इज इन पेरिस। नेक्स्ट टाइम 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद। तो बहुत सारे जो है वर्ड होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट। सो गैम्बिट किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस, चेस, एंड द करेक्ट आंसर इज चेस। सो गैम्बिट इज अ टर्म एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ चेस। गैम्बिट इज चेस ओपनिंग इन विच प्लेयर सेक्रीफाइस मटेरियल यूजुअली अ पॉन with the hope of achieving a resulting advantageous position। तो गैम्बिट्स क्वीन जो है वो भी एक मूवी भी आई थी, तो चेस से रिलेटेड टर्म है दैट इज गैम्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग। सो ओलंपिक फ्लैग जो है उसमें कितने रिंग होते हैं, तो 6, 5, 7, 4, एंड द करेक्ट आंसर इज 5। सो द ओलंपिक फ्लैग हैज 5 इंटरलेस्ड रिंग इन द सेंटर, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। और ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस रिंग रिप्रेजेंट द 5 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। टोटल जो है टोटल कंटिनेंट्स आर 7, बट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कंसिडर्ड एज 1 कंटिनेंट, एंड एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका दैट इज नॉट अ लिविंग कंटिनेंट, दैट इज अ रिसर्च कॉन्टिनेंट। सो टोटल 5 कंटिनेंट को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, 14th of November, 28th of October, 4th of December, 29th of August, and the correct answer is 29th of August. So National Sports Day is celebrated on 29th of August in the memory of the great hockey player that is Major Dhyanchand. He is known as the Wizard of Hockey. इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, Wizard of Hockey, एंड इनका बर्थडे है 29 अगस्त को, इसीलिए जो है इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नेम्ड एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। किनको जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जोगिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, मिल्खा सिंह, मोहिंदर सिंह, एंड द करेक्ट आंसर इज मिल्खा सिंह। So Milkha Singh, also known as Milky Singh, is an Indian athlete who represented India in the 1960 Summer Olympics in Rome and the 1964 Summer Olympics in Tokyo, and he is known as the Flying Sikh के नाम से जो है ये जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरो टाइटल। तो रोलैंड गैरो टाइटल किस ग्रैंड स्लैम को कहा जाता है। अभी हमने देखा 4 मेजर ग्रैंड स्लैम इन टेनिस, तो विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच ओपन। So the French Open is also known as Roland Garros after the name of French aviator and a fighter pilot during World War I। उसी के नाम पे ये रोलैंड गैरो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्ले कोर्ट पे जो है ये खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है, अंपायर्स, स्पोर्ट्स एडिटर, स्पोर्ट्स पर्सन, कोचेज, and the correct answer is coaches. So the Dronacharya Award is presented by Indian government to people showing excellence in sports coaching. B.I. Fernandez is the first foreign coach who was awarded by Dronacharya Award in 2012, और ये जो है कोचेस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो, क्रिकेट, रेसलिंग, कबड्डी, एंड द करेक्ट आंसर इज
javelin throw. So नीरज चोपड़ा इज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कंपीटिंग इन द जैवलिन थ्रो, और इस बार जो 2024 ओलंपिक्स हुआ था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया के लिए जीता था। गोल्ड जो है वो अरशद नदीम जीत लिया था जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट? तो चेस का गेम जो है कहाँ स्टार्ट किया गया था? अरबिया, पर्शिया, यूरोप, इंडिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। So the earliest predecessor of chess originated in India before the 6th century AD from India. The game is played in Persia. उसके बाद जो है पर्शिया जो ईरान जो है वहाँ जो है ये आपको चला गया। तो सबसे पहले चेस का गेम जो है इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच गेम द टर्म पुटिंग इज यूज्ड? तो पटिंग जो है ये किस खेल का जो है ये वर्ड है? गोल्फ, चेस, बिलियर्ड्स, हॉकी, एंड द करेक्ट आंसर इज गोल्फ। So some of the key terms associated with golf are putting, chipping, pitching, sand play and bunker strategies. ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम हैज ऑस्ट्रेलिया वन द वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑस्ट्रेलिया हैज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड कप, और ये कितनी बार जो है ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है? तो 5, 6, 3, 4, एंड द करेक्ट आंसर इज 6. So Australia defeated New Zealand by 7 wickets in the final to win the World Cup for the 5th time. Apart from 2015, Australia has grabbed the cup in 1997, 1999, 2003, 2027 and 2020. 3 defeated India in the final match and it played in Narendra Modi Stadium, Gujarat, और वहाँ पर जो है ट्रेविस हेड जो है वो जो है आपको मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का 6th टाइम था। इंडिया टोटल 2 टाइम्स जो है वो विनर रहा है, 1983 और 2011। महेंद्र सिंह धोनी वाज द कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? राहुल द्रविड़, शुएब अख्तर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, एंड द करेक्ट आंसर इज शुएब अख्तर। सो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर was nicknamed the Rawalpindi Express due to the city in which he was born. He is regarded as one of the fastest bowler in modern cricket. अभी तक जो है लगभग 162 के अप्रॉक्स जो है किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है इन्होंने गेंद डाली थी, जिसके बाद जो है सबसे फास्टेस्ट बॉलर अभी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो पंकज अडवाणी जो है वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज बिलियर्ड्स। सो पंकज अडवाणी इज एन इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ इंग्लिश बिलियर्ड्स एंड फॉर्मर स्नूकर प्लेयर। तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स जो है वो इसके प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईडन गार्डन कोलकाता इज एसोसिएटेड विथ? तो ईडन गार्डन कोलकाता में स्टेडियम है, और ये किस स्टेडियम है, कौन से खेल का स्टेडियम है? क्रिकेट, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। सो ईडन गार्डन इज अ क्रिकेट ग्राउंड इन कोलकाता, इंडिया। इट इज होम ऑफ द बंगाल क्रिकेट टीम। उस जैसे मुंबई में कौन सा स्टेडियम है? बानखेड़े मुंबई में है। दिल्ली में जो है आपको फिरोज शाह कोटला है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम जो है आपको अरुण जेटली स्टेडियम जो है उसके नाम पे ये स्टेडियम आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल विनर इंडिविजुअल कैटेगरी इन ओलंपिक गेम्स? तो सबसे पहली बार ओलंपिक गेम में इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पर्सन कौन है? RVS राठौर, सुशील कुमार, लिएंडर पेस, अभिनव भारत, एंड द करेक्ट आंसर इज अभिनव बिंद्रा. Abhinav Bindra, an Indian professional shooter, became the first Indian to win the individual gold medal at the 2008 Beijing Olympic. और जो है सेकेंड जो पर्सन थे इंडिविजुअल में वो कौन थे? सो ही वाज नीरज चोपड़ा वन द इन जैवलिन थ्रो इन 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें जो है उन्होंने जीता था आपको गोल्ड मेडल, एंड ही वाज द फर्स्ट एथलीट में इंडिविजुअल कैटेगरी में पहले नंबर पे थे जो ये उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. Next question is which of the following countries was defeated by the India in the inaugural T20 Cricket World Cup? So 2007 में inaugural T20 World Cup हुआ था और इंडिया विनर रही थी. तो पहली बार किसको इंडिया ने फाइनल में हराया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान. So 2007 ICC World T20 was inaugural 20 Cricket World Cup Championship. Pakistan was defeated by India in the finals. Mahendra Singh Dhoni was the captain. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच गेम टाइगर वुड्स इज फेमस? तो टाइगर वुड्स जो है वो किस गेम से बिलोंग करते हैं? गोल्फ, फुटबॉल, पोल वॉल्ट, बास्केटबॉल, एंड द करेक्ट आंसर इज गोल्फ. सो एल्ड्रिक टॉन टाइगर वुड इज एन अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हुज अचीवमेंट्स टू डेट रैंक हिम अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल गोल्फर्स ऑफ ऑल टाइम. तो ये गोल्फ के प्लेयर हैं टाइगर वुड्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल जो है अब इसका नाम जो है अमेरिका ने चेंज भी किया है अपने यहाँ, तो इसका नाम रख दिया जॉर्ज वाशिंगटन चैनल। तो इसको सबसे पहली बार जो है क्रॉस करने वाली इंडियन जो है वो कौन थी? पीके बनर्जी, मिहिर सेन, विक्रम मर्चेंट, आरती शाह, एंड द करेक्ट आंसर इज मिहिर सेन। So Mihir Sen was a famous long distance swimmer, best known for being the first Indian to conquer the English Channel from Dover to Class in 1958 में जो है इन्होंने क्रॉस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम विच वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द एम्स्टर्डम इन 1928। तो हमने देखा था कि पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। उस वक्त इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? लाइबोखन, जयपाल सिंह, किशन लाल, ध्यानचंद, एंड द करेक्ट आंसर इज जयपाल सिंह। Jaipal Singh Munda was a tribal man who captained the Indian field hockey team to clinch gold in 1928 Summer Olympic in Amsterdam. However, Brume Pinniger captained the side of the final. Next question is the first Asian city to host Summer Olympics was। तो पहला एशियन सिटी कौन था जिसने ओलंपिक को होस्ट किया? टोक्यो, बीजिंग, सिंगापुर, मॉस्को, एंड द करेक्ट आंसर इज टोक्यो। So the 1964 Summer Olympics held in Tokyo was the first Olympics held in एशिया। तो सबसे पहली बार एशिया में हुआ था, टोक्यो ने इसको होस्ट किया था। इंडिया में अभी तक ये ओलंपिक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम बैट्समैन हु हिट फास्टेस्ट सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट। तो सबसे तेज जो है ओडीआई क्रिकेट में जो 50 ओवर का मैच होता है उसमें तेज सबसे जो है 100 जो है वो किसने जो है वो लगाया है सबसे कम बॉल में? मिसबाउल हक, स्टीवन स्मिथ, एबी डिविलियर्स, कोडी एंडरसन, एंड द करेक्ट आंसर इज कोडी एंड एबी डिविलियर्स। So South Africa's cricketer A.B. de Villiers hit the fastest century in one-day international cricket. He scored the century in the 31st ball against West Indies के अगेंस्ट जो है इन्होंने 2015 में जो है ये कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन इस साइड इन रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी जो होता है जो आप बहुत डिफिकल्ट गेम है, इसमें बॉल को लेकर दौड़ना होता है वो इस गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक, और इसमें टोटल कितने प्लेयर होते हैं? 12, 16, 11, 15, and the correct answer is 15. So rugby football is played on a field by two teams of 15 people. So these are the 30 most important questions which we have discussed. Hope you guys have enjoyed the session well. So if you have enjoyed, so do like and share these videos. And if you have any queries, so write in the comment section. We will get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.